السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے کاف لیگ کے رہنما محترم جناب چودھری شجاعت حسین صاحب، اور ہمارے ساتھ لائن پر شریک گفتگو ہوں گے محترم جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام جی. چودھری صاحب صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی، شکر ہے اللہ کا. اس سے پہلے کہ آپ میرا انٹرویو شروع کریں، مجھے ایک بات تو بتائیں ذرا. جی جی فرمائیے چودھری صاحب. یہ جو پناما لیک ہوئی ہے، اس میں کوئی آپ کا بندہ واقف نہیں ہے؟ کیا ہو گیا چودھری صاحب؟ ان کو ذرا فون کر کے پوچھیں کہ یہ موسم تھا یہ اتنا بڑا شوشہ چھوڑنے کا؟ کیوں؟ ضائع ہوں رہی ہے اینی ایڈی پناما لیگ. وہ تو گرمیاں شروع ہو گئی ہیں تو پناما لیگ کر دیتے ہیں. اچھا، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ قوم احتجاج کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی؟ جی، احتجاج کا تو موڈ ہے قوم کا، بھرے پڑے ہیں لوگ حکومت کے خلاف، مگر گرمی اتنی بڑھ رہی ہے کہ 3 بندے نہیں کٹھے ہوندے. اگر گرمیاں نہ ہوتی تو پھر اکٹھے ہو جانے تھے بندے. ظاہر ہے، چلو سانو چھڈو، ساڈے تے سردیاں چ بھی نہیں ہوندے کٹھے، مگر اپوزیشن جس طرح آپس میں اکٹھی ہوئی تھی تھوڑے بہت تو ہوئی ہونے سن. لیکن جیسا اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاناما لیکس میں تو مونس علی کا نام بھی آ گیا. کوئی ایسی گل نہیں ہوئے تو نہ کرو یہ غوری صاحب جی. وہ جو سب سے ادھر بیٹھے میرے نال بیٹھا سر. تیرے نال بھی کوئی بیٹھا ہے؟ ایس تو کہ کند ہوئی پہلی گند ہے جیڑی آپ دسن ڈئی ہے. تو کوئی ہوئے والی گل نہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں جنید صاحب، یہ مونس علی کا نام جو آپ بتا رہے ہیں یہ غلط فہمی ہے. صاحب میں نے خود پڑھا مونس علی کا نام. کیا لکھا ہوا تھا؟ مونس کا نام لکھا ہوا تھا. وہ سپیلنگ آپ بتائیں کیا لکھے ہوئے تھے؟ MOONIS مونس. جنید صاحب MOON مون IS از مون از چودھری. وہ نام نہیں تھا لکھا ہوا، وہ انہوں نے ویسے بتایا ہے کہ آگے ماشاءاللہ رمضان شریف آ رہا ہے، تو اس مہینے میں آپ کو پتا ہے کہ مون جو ہے چاند آئی، میرا مطلب ہے وہ چودھری ہوتا ہے. ہاں جی، چاند نکلتا ہے تو افطاری ہو جاتی ہے، چاند چھپ جاتا ہے تو سحری بند ہو جاتی ہے. عجیب انٹرپریٹیشن کیا آپ نے. یہ مون از چودھری لکھا ہوا تھا. ویسے تو صوفی کہتا ہے کہ چودھری صاحب تہاڈے متعلق لکھے ہے، تانوں مون سمجھتے ہیں، پاکستان کی سیاست کا چاند سمجھتے ہیں وہ. اور میں چل مینوں تو سمجھ آ گئی ہے، کسی اور نہ دسی. میرا تو نام آ گیا نا پھر پناما لیگ جی. میں کہ میرے تو انہوں بنا ہی رکھ، اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی آف شور کمپنی نہیں بنائی. ویسے صاحب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ ڈاکٹر طاہر القادری کے بغیر تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہے نہیں ہے. ان سے بھی ذرا نقطہ نظر پوچھ لیں کہ وہ کس موڈ میں ہیں. وہ تو کینیڈا بیٹھے ٹھنڈیاں ہوائیں جی. نہیں صاحب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے اور دھرنا بھی دیں گے. لو میرے کو الحال وہ جنی دیر اتنی گرمی پہن رہی ہے وہ نہیں آن گے. صاحب انہوں نے اتنی شدید سردی میں دھرنا دے دیا تھا تو گرمی میں کیوں نہیں دیں گے؟ جنید صاحب سردی چ بندہ کٹھا ہو جاتا ہے. ہاں جی، میں کئی باری سردیاں چ ویکھیا صوفی کٹھا ہویا بیٹھا، گرمیاں چ نہیں بندہ کٹھا ہوندا، گرمیاں چ سگوں کھلر جاندا بندہ. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب پھر دھرنے کا اعلان پکا ہے؟
धरने की बात तो हो गई है पुरानी जुनैद साहब। अच्छा। अब तो ताहिरुल कादरी ऐवानों के दरो दीवार से टकराने को है। वाह जी वाह, ताहिर कादरी साहब ने कि स्पाइडरमैन ने? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਤੇ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। चौधरी साहब सुनिए सुनिए, सुन रहे यकीन हैं। कीजिए जब कादरी निकलेगा तो मेरे जानिसारों का एक रेला होगा। उसमें हर वो बंदा होगा जो वेला होगा। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। सुनिए चौधरी साहब सुनिए, ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਮਫਲਰ ਲਪੇਟੇ ਆ। चौधरी साहब आप एक बार वो वेला तो आने दें, फिर मैं बताऊंगा कि कौन वेला है और कौन काम पे लगा हुआ है। और एक बात और याद रखिएगा, ये पनामा लीक्स महज इंकशाफ नहीं है। ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਜੇ। जी जी डॉक्टर साहब। चौधरी साहब गल बदलनी लगी, गल बच चुकी है। मैं ये बताना चाहता हूं कि पनामा लीक्स इस जुल्म की मारी हुई कौम के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है। ਬ੍ਰਹਮਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਚੌਂਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੰਘੋ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੌਂਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੋਹਫੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੋਹਫੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੋਹਫੇ। देखिए जुनैद साहब, अभी इस खाकसार ने सिर्फ ऐलान किया है तो इक़्तिदार के सतून लर्ज़ा-बर अंदाम हो गए हैं। ਅਰੇ ਲਰਜ਼ਾ ਬਰੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਕੀਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਡੇਢ ਛਟਾਂਗ ਲਰਜ਼ਾ ਬਰੰਦਾ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जैसे वैसे सियासी मुबस्सिरीन की तो यही राय है, सबकी कमोबेश, कि ताहिरुल कादरी साहब के बगैर आपकी तहरीक चलती हुई नजर नहीं आ रही। देखें जुनैद साहब, तहरीक तो अकेले इमरान खान भी चला रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये पूरे मुल्क का एक बड़ा इशू है, इस पे सबको इकट्ठे होना चाहिए। कादरी साहब को भी चाहिए कि फौरी तौर पे पाकिस्तान आए। अगर इनके पास टिकट नहीं है तो ऐसे भेज देने हैं। दो टिकटा भेज दें। पार्लीमेंट च भावें इन्हां दी इक्को सीट हुंदी है, जहाज च दो लैंदे ने। दो सीटें क्यों सर? लम्मे पै गए होंदे ने। कैनेडा दूर बहुत है, उधर दे खत आंदा आंदा थक जाता है। ओ कादरी साहब से मैं कहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं, फौरन यहाँ पे आए वापस। अच्छा। बल्कि इनको मैं कहूंगा कि पासपोर्ट पे जिनके वीजा हो, पैसों से भरा हुआ खीसा हो, कनाडा में लगी हुई मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो आए तो सही, इधर भी इंशाल्लाह मौजें लग जाएंगी। चौधरी साहब मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं नहीं घबराता, कोई नहीं रोक सकता कादरी को आने से और गुलाम अली को गाने से। अवाम नु एंटरटेन करने से गुलाम अली खूब पाया ने। डॉक्टर साहब, गुलाम अली नु गान तो इंडिया वालियां ने रोकिया सी, ਅਸੀਂ नहीं रोकिया। ਮੈਨੂੰ तो गुलाम अली बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी, मेरे शौक दा नहीं एतबार देना जावे मेरा एतबार ये गुलाम अली कम और इकबाल बाबू ज्यादा लगा। चौधरी साहब गाना गुलाम अली दा ही, लेकिन लग रहा है हीर पढ़ रहे थे। पिंडां दे लोग हीर बड़े शौक नाल पढ़दे ने। गौरी साहब, हाँ जी, हाँ जी, जी। जिस तरह तुसी किधरे जाओ तो तुहानू वेख के लाहौल वाला पढ़दे ने, इंज पिंडां जाओ तो फिर हीर पढ़दे ने। चौधरी साहब, मैं एक संजीदा आदमी हूं। बड़ा संजीदा है तू, तेरी लम्स यूनिवर्सिटी च कंडीन है।
ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈਡ ਰੱਖੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ? चौधरी साहब आप ऐसे मेरे से नाराज हो रहे हैं, मैं तो आपका बड़ा फैन हूँ। ਜੀ आप वाहिद चौधरी हैं जो इतने प्यार से बोलते हैं, वरना तो चौधरी यही कहता ओए चौके नू ओए फाड़े नू ओए रख दे ओ फाड़े नू छोटे नू आप क्या चौधरी ਇਹਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਜੀਦਾ ਆਦਮੀ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਨ ਦੇ। बात को तो पता नहीं किधर ले गए हैं। मैं कह रहा था कि कादरी साहब आप वापस तशरीफ लाएं अपने वतन। हमारे होते हुए आपके दिल में कोई खौफ नहीं होना चाहिए। चौधरी साहब मेरे दिल में खौफ, याद रखिए जिस तरह गरीब की हंडिया में गोश्त नहीं होता, इस तरह कादरी के दिल में खौफ नहीं होता। लो जी, पहले डॉक्टर साहब ने गुलाम अली की मिसाल दी है, हुण गोश्त की मिसाल दे दी। एंटरटेनमेंट दे नाल नाल हांडी रोटी का भी बंदोबस्त कर रहे ने, वापस आन ही आन। चौधरी साहब खौफ तो आपको होना चाहिए। पनामा लीक्स में अपने बरखुरदार मूनस मियां का नाम भी आ गया है। बहुत अच्छे, इन्नी को सियासत आंदी जी डॉक्टर साहब ने। अपने लो मैनू कंन च दसन डे ने ते सारे टीवी ते नशर कर देता। डॉक्टर साहब ये तो सबको पता है कि मूनस का नाम आ गया है। वो तो मूनस मियां कहन डे। ओ भाई जी मूनस जिलाई मूनस चौधरी दा नाम है, मियां दा नहीं आया। अजकल जेड़े जेड़े सियासतदान नाल मियां लगदा उन्हां दी ते मौज लगी सिवाय मियां अजर तो। सो डॉक्टर साहब वापस तशरीफ लाए, आके यहाँ पे कोई धुएंधार तकरीरें करें, वरना ये मियां बरादरान तो हट ही नहीं रहे, ऐसी ऐसी जज्बाती तकरीरें कर रहे हैं। कभी माइक सुट देंगे जी, कभी मेज बजान लग पेंदे। चौधरी साहब कभी आपने भी शहबाज शरीफ साहब की तरह माइक फेंके? नहीं जी, की लोड़ है ड्रामा करन दी। एडा नहीं शहबाज शरीफ मासूम के जेड़ी माइक नूं तार लगी वो भी थले सुट दे। जे तार वाला माइक भी थले सुट दे ते वो लोकां नूं किवें कहेगा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। इतना बड़ा इशू है अपोजिशन के हाथ में, लेकिन आप लोग तो कोई जलसा जुलूस एहतजाज करते हुए नजर नहीं आ रहे। जुनैद साहब इसे काम वास्ते कारीगर बुलान डे। सानू आप धरने शरने देने आंदे होंदे ते असी कारीगर दे तरले करदे। जिस तरह मुल्तान च हलवे दो ही मशहूर ने, एक हाफज वाला ते एक अब्दुल वदूद वाला। इस तरह धरने दे कारीगर दो ही ने, एक पीटीआई वाले ते एक कादरी वाले। साहब आप खुद क्यों नहीं नजर आ रहे? हमने भी दिए हैं धरने। माल रोड दे धरना किन्ने दिता है? किसने? किसाना ने, जिन्हें उन्होंने बेचारे ने आलू ते टमाटर साड़ छड्डे ने। जुल्म ही है ना, ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ ਸਾਲਨ ਦਾ। ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਜਲਸਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? किसने? पीटीआई ने। मुल्तान च हड़ताल किन्ने की थी? किसने? नर्सा ने। आप कहाँ हैं? ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठा। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। लो जी, ये बजट की आमद शुरू हो गई है, गल बात गुफ्तगू चमा चम अब करने लग गए हैं लोग, और ये भी बहस शुरू हो गई है कि होना वही है जो पहले होता है, वो को ड्रामा सा करके अदादो शुमार बता के गवर्नमेंट फारग हो जाएगी, न लोगों को समझ लगेगी ना अपना वो समझाना आएगा उनको, तो फिर वही तकरूर सुन के तो फिर अगले दिन नवी जिंदगी शुरू हो जाएगी। बड़ी अजीब हालत हो गई है, लोग बड़े परेशान होते हैं। आज तक यही देखते आए हैं
کہ لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھاتا بھی نہیں ہے. نہیں لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. تو یار کیوں نہیں سوئے ابھی مجھے ملا وہ نعیمہ کینچی بیچارہ، اس نے مجھے کھڑا کیا کہ یار یہ بات بتاؤ، یہ جو بجٹ میں اس وقت اپنے پوترے کو اٹھا سوری اپنے بڑے بھرا کو اٹھا کے جا، تو مجھے یار جلدی تھی، میں نے کہا یار پھر کسی وقت تمہیں سمجھا. سمجھنا چاہتے ہیں پاس جنید ان کو، میرے جیسا دانشورہ باہر محلے میں تو نہیں ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ لوگ سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں. لوگوں کی بجٹ میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے. بار بار ہر سال ہم یہ رونا روتے ہیں کہ اخبارات میں پہلے ایک جشن کا سما ہوا کرتا تھا جب بجٹ پیش ہوتا تھا، اب لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے. یار آہستہ آہستہ آک گئے ہیں لوگ، سمجھ نہیں آتی تو پھر کیا کریں. نہیں تو حکومت کا بھی فرض بنتا ہے، تو لوگوں کا بھی تو کچھ فرض ہے نا کہ وہ بجٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. بالکل چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹرز کی بنیاد پہ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹرز کو بنیاد بنا کر ہم بالکل مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. سستا ہو گیا، خوش ہو گئے، پیٹرول تھوڑا سا بڑھ گیا، نرائی ہو گئے، صابن کی قیمت میں ہلکی سی کمی آ گئی ہے، خوش ہو گئے. ویسے صابن سستے پہ تو یہ زیادہ تر گوری خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس بیچارے کے پنڈے پہ صابن لگتا بہت. 1.5 گھنٹہ نہ آگے کھیر تھک کے یہ کہتا ہوا باہر آ جاتا ہے کہ صابن ہی جالی آنڈ ہے. چلو تعلیم فری نہیں کرتے، صابن تو فری کر دیں. صحیح بات ہے. اصل میں نا سچ جی بتاؤ، تمہارے پورے محلے میں تم سمیت کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ جی ڈی پی کیا ہوتی ہے؟ جو اس آگدار صاحب چلا چلا کے کہتے ہیں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ، تو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس یا گروتھ ریٹ کس کو کہتے ہیں؟ گروتھ ریٹ، گروتھ ریٹ، گروتھ کہتے ہیں اگنے کو. تو جو بوٹا ہے نا اس کے جو روئی بڑھنے کی شرح ہوتی ہے اسے گروتھ ریٹ کہتے ہیں. سچی بات ہو، تم مجھ سے بھی یہ سوال پوچھ سکتے ہو کہ تم اینکرز میں سے یا تم اخبار نویسوں میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ گروتھ ریٹ کیا ہوتا ہے، جی ڈی پی کیا ہوتا ہے، بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے؟ سچی بات ہے کہ ہم میں سے بھی میرا خیال جن لوگوں کو اس بات کا ان ٹرمینالوجیز کا پتا ہے ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوگی. سچی بات، سچی بات ہے. وہ صرف ہم نے ماسٹرز کرتے ہوئے شاید کوئی 2-3 چیپٹرز اکانومی کے پڑھے ہوں گے، اسی کو لے کے کام چلا رہے ہیں. ورنہ دیکھو سیدھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ جن لوگوں نے اوپینین بلڈنگ کرنی ہوتی ہے ان کو تو پورا اس پہ عبور حاصل ہونا چاہیے کہ بجٹ ہوتا کیا ہے. بجٹ میں جو وزیر خزانہ صاحب ہمیں ٹرمینالوجی سے مستفید فرما رہے ہیں وہ ہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہے. اور یہی بات میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ حکومت، یہ حکومت نہیں، اس سے پہلی حکومتیں بھی، یہ سارے جتنے فگرز ہیں یہ گروتھ ریٹ کے حوالے سے، جی ڈی پی کے حوالے سے جتنے اعداد و شمار دیے جاتے ہیں، اسٹیٹسٹکس دیے جاتے ہیں، یہ سارے جعلی ہوتے ہیں. اچھا ہاں بالکل، مجبور کر کے اداروں سے یہ حاصل بلکہ اگلوائے جاتے ہیں اپنی مرضی کے اسٹیٹسٹکس، اور بالکل احساس نہیں ہوتا، کسی کو بھی احساس نہیں ہوتا. تو بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں. ہم تو غور سے سن رہے ہوتے ہیں لیکن حکومتیں کھیلواڑ کر رہی ہوتی ہیں. انہی اعداد و شمار کو بنیاد بنا کے آپ کو اپنی آئندہ منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے، اقتصادی منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے، پلاننگ کرنی ہوتی ہے آئندہ کے لیے. اگر وہی اعداد و شمار جعلی ہوں گے تو آپ اس منصوبہ بندی پر کس طرح بھروسہ کر سکتے ہیں؟ صحیح. اور میں تمہیں ایک بات بڑی دلچسپ بتاؤں جی، یہ پاکستان کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھو تو ہمارے جو موجودہ وزیر خزانہ صاحب ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ان سٹیٹسٹکس کو غلط طور پہ کوٹ کرنے کے جرم میں، یعنی غلط بیانی کے جرم میں ایک مرتبہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں $5.5 کروڑ کا جرمانہ کروا چکے ہیں. آئی ایم ایف نے پاکستان کو 1999 میں یہ باقاعدہ زیادہ پیسے سنے تو رونے لگتے ہیں. کیا بتا رہا ہوں ہماری صحیح کہہ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. 1999 میں آئی ایم ایف کو اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت کا بجٹ ڈیفیسٹ بھی غلط بتایا تھا، جی ڈی پی بھی غلط بتایا تھا مبینہ طور پہ، جس پہ 2-3 سال کے بعد کہیں جا کے آئی ایم ایف نے پاکستان کو $5.5 کروڑ جرمانہ کیا تھا. اور ہمارے ہاں حکمران، ہمارے وہ جو وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے جو امپورٹڈ، شوکت عزیز صاحب، انہوں نے بھی یہی حرکت ایک دفعہ فرمائی تھی. کیا
बजट से पहले इसी तरह वजारत ज़राअत का इजलास हो रहा था। मौसूफ ने कहा कि जी मुझे मेरी मर्जी के फिगर दो और अपना डेफिसिट कम से कम करके बताओ, और बताओ कि ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा हुजूर वाला कैसे आपको बता दें कि ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, सारी फसलें अवाम के सामने हैं, सारी जो जितनी फसलें हुई हैं ये टारगेट से कम हुई हैं, किस तरह हम ग्रोथ रेट ज्यादा बता दें। तो वो वजीर खजाना साहब शौकत अली साहब गुस्से से इजलास से उठ के चले गए थे। हाय हाय, और नुकसान पता है क्या होता है? तो ये वजारत ज़राअत वालों ने कहा था। हाँ? बहुत अच्छा, उनकी खिदमत में डेस्क भी जाना चाहिए। लेकिन वो उस वक्त कोई होगा इस तरह का सरफिरा अफसर जिसने ये कह दिया होगा, वरना आजकल स्टेट बैंक, FBR या किसी भी मिनिस्ट्री में ये हिम्मत नहीं होती कि वो इनको इनकार कर सके। तो उसकी भी कोई बहादुरी नहीं थी? है, उसकी तो बहादुरी थी ना, कह रहा हूं मैंने ठीक डेस्क भी जाया, नहीं तो मैंने कहा मैं पूछ लूं अपना डेस्क। स्पीकर इधर बैठा, डेस्क उधर बजाई जा रहा है। बहुत अच्छे, ये वो स्पीकर है जो किराए पे भी नहीं चढ़ता, आखिर को कहते हैं भाई जी इसका स्टैंड नहीं ठीक, डिग पड़ता है। डार साहब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर किस्म के जो प्री बजट सेमिनार हो रहे हैं वहां पे चीख के कह रहे हैं कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 4.7 से क्रॉस कर गया हुआ, जबकि दुनिया जान के किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ के देख लो, वो हल्फन कसमन कहता है कि जी पाकिस्तान का ग्रोथ रेट इस वक्त 4 से 1 पॉइंट भी ज्यादा नहीं है। अब कौन इस बात का फैसला करेगा? यार डॉक्टर साहब ऐसे तो माशाल्लाह शक्ल से और हेयर स्टाइल से अक्लमंद आदमी लगते हैं। अक्लमंदों वाले काम ही कर रहे हैं, बजट डेफिसिट कम बता रहे हैं, ग्रोथ रेट ज्यादा बता रहे हैं, बताने में क्या है? यार तो अवाम सारी 20-22 करोड़ बिल्कुल बेचारी घुघू घोड़ा बन के बैठी हुई। हाँ बिल्कुल, और घुघू घोड़ा बनने की फिर सजा भी अवाम भुगतती है। मुझे अच्छी तरह याद है गालिबन 2012-13 का बजट था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का आखिरी बजट होगा, अब्दुल हफीज शेख साहब बजट पेश कर रहे थे, जानबूझ के दानिस्ता सिर्फ बजट डेफिसिट कम शो करने के लिए 350 अरब रुपए की IPPs को अदायगियां नहीं की गई, और उसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा था। IPPs ने कहा जी पैसे नहीं देते तो बिजली कितों देंगे, उन्होंने दिए। देखो बीच में पंजाबी बोल लोड शेडिंग हो, उर्दू पंजाबी में बदल जाती है। यार तुम्हारा वफाकी शो है, उर्दू बोला करो। तुम्हारा वफाकी नहीं है? नहीं, हम तो 4 सूबे हैं ना, एक साथ बाजी कश्मीर बैठी। दुनिया में एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चलो खबर सुना दो, फिर गौरी साहब को गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। खबरों के मसले में बहुत सेंसिटिव है गौरी। अच्छा जी? हाँ जी, सवेरे अखबार लेट लेके आए ना तो ये बकायदा लड़ना शुरू हो जाता है। वो क्यों? और यार अखबार में इसने रोटी लपेट के काम पे जाना होता है। कई दफा गरम रोटी लपेट लेता है तो उल्टी अखबार रोटी पे छपी होती है। बाद में रोटी पड़नी शुरू कर देता है। सितारों की चाल, सोमवार रिस्क में इजाफा होगा। शाबाश, रिस्क के ऊपर तो सारी खबर छप गई है, तो इजाफा कैसे होगा? खबर क्या है जी आप पहली? जी सुनिए, लंदन में फजलुर रहमान की जरदारी से मुलाकात, JUI की तरदीद। मौलाना का कहना है मुलाकात मेरा मिशन नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें फजूल इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। मौलाना का ये मिशन नहीं, मौलाना का मिशन इम्पॉसिबल है। अरे यार वो तो अंग्रेजी फिल्म थी, इनका मिशन है मिशन ऑफ मौलाना। और मिशन सिर्फ इतना इनका कि इधर लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा बातें शुरू कर बैठे हुए हैं कि जी इलाज कराने के लिए दौड़ जाते हैं लंदन सारे सियासतदान। मौलाना ने सोचा कि उधर से डॉक्टर को पूछ आते हैं कि भाई जी घर आके वेखण दे किन्ने पैसे। अल्लाह ना करे कोई जरूरत पड़े तो बंदा फोन कर देता है कि भाई गोरा जी इधर आ जाए, हमने नहीं उधर जाना। हम उधर जाते हैं तो फिर अवाम हमें बहुत खरी खरी सुनाती है। या फिर शायद मौलाना उस डॉक्टर से मिलने गए हों जिनको नवाज शरीफ साहब दिखाने जाते हैं। जाके डॉक्टर को झाड़े के सही दवाई क्यों नहीं देता, हर हफ्ते इन्होंने आना पैदा है। यरदारी साहब को तो वो मिलने नहीं गए, ये ठीक बात है उनकी। यरदारी साहब के साथ उनकी कट्टी हो गई। अच्छा, बात भी नहीं करते? हाँ, जो बंदा सीट पे ना हो वो मौलाना को यार लगता है। नहीं यार, मौलाना का कहना है कि वो तो लंदन में है ही नहीं है, जरदारी साहब तो दुबई में है। तो जो लंदन जरदारी साहब फिर रहे हैं वो कौन के हम शक्ल है? अमान से जरदारी साहब को फोन करके दुबई बताओ कि आपका को गेटअप करके लंदन में बंदा फिर रहा है। मौलाना को क्यों ना बताओ कि आपका गेटअप करके यहाँ बंदा बैठा होता है। यार वो तो बेचारा बच्चों की रोजी कमा रहा होता है।
को मौलाना को अल्लाह माफ करे डाज थोड़ा दे रहा होता है। ये सही कह रहे हैं JUI वाले, मौलाना को जरदारी साहब को नहीं मिलने गए, वो उधर जो ब्रिटिश है ना वो ये डार्क ब्राउन, वो यार क्या नाम है उसका, डेविड ब्राउन, उसने फोन किया था मौलाना को कि मौलाना ताड़ी परजाई नू आलू वाले परौंठे नहीं पकाने आंदे, जरा 10 जवाब। रेसिपी बताने गए हैं। शाबाश। आलूओं वाले परांठे की कौन सी रेसिपी? रोटी में आलू डालने होते हैं और उसमें कमेटी डालनी होती है। उस खतून बेचारी से ऐसे ऐसे नहीं होते। मौलाना का जरा हाथ भारा है ना, वो एक कर ही ऐसे करते हैं तो कितनी बड़ी रोटी फैल जाती। जी अगली खबर है, उमर रसीदा वजीर आला कायम अली शाह ने आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2008 में वजीर आला बने तो वेबसाइट पर तारीख पैदाइश 1927 दर्ज थी। 2013 में तारीख पैदाइश 1933 हो गई और अब उम्र का कॉलम ही हटा दिया गया। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये तो उनकी वेबसाइट से तारीख पैदाइश मिटी है। इतने उम्र के बंदे की तो हाथ की लकीरें मिट जाती हैं। सही बात है, इतने बुजुर्ग बंदे के हाथ का पता ही नहीं चलता, पुट्ठा किधरों है तो सीधा किधरों। कई दफा बुजुर्ग कह रहा था कि मैं तेरे छड़नी है पुट्ठे हाथ दी, आगे से पोतरा बता रहा था कि पुट्ठा करते लवो फिर। शाह जी की तारीख पैदाइश तो ID कार्ड से भी उड़ गई होगी। नहीं, वो आम हम लोगों के शनाख्ती कार्ड से उड़ जाती है तारीख पैदाइश। शाह जी ने जब कार्ड बनाया था उस वक्त तो कार्ड चमड़े पे बनता था। हाँ, पहले शनाख्ती कार्ड की तो इन्होंने जूती बनवा ली थी, फिर दूसरा अप्लाई किया तो वो फिर बनवाया जो चमड़े पे, वो इनके पास ही है। उस जमाने में तस्वीर नहीं होती थी ID कार्ड पे? होती क्यों नहीं थी? वो कैमरे से नहीं थे ना खींचते। जब शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते थे तो स्टूल पे बंदे को बैठा के ना सामने एक मोची रंबी के साथ तस्वीर खोदता था। कई दफा वो चमड़े का कार्ड पानी में गिर के फूल जाता था, फिर नाके पे पुलिस खड़ी करके बड़ी बहस करती थी, यार इथे तो चंगा बड़ा मोटा बंदा, तुम तो बड़े पतले हो, 2 नंबर शनाख्ती कार्ड लेके फिर रहे हो। अजीजी तुम्हें शाह जी के कार्ड का इतना ही पता है तो ये बता दो कि उनकी शनाख्ती अलामत क्या थी? चलती हुई नब्ज। अजीजी उस वक्त शनाख्ती कार्ड की फीस कितनी होती थी? 1.5 किलो गंदम, और अगर अर्जेंट चाहिए तो फिर 2.5 किलो। तो कार्ड बनता कितने दिन में था? यार मैं कार्ड के दफ्तर में लगा हूँ। ये इतनी पुरानी इंफॉर्मेशन आपसे लेनी है, आप बड़े दानिशवर हैं। अगली खबर पढ़ो, उसने तो मुझे निजाम सक्का के दौर का दानिशवर बना दिया। जी, लोड शेडिंग कम करने के लिए पंजाब और कराची में कारोबार शाम को जल्द बंद कराया जाए। 1 मेगावाट बिजली बचाना 1 मेगावाट पैदा करने से बेहतर और आसान है। ख्वाजा आसिफ। ओए होए होए होए, बहुत बड़ी बात कर दी ख्वाजा आसिफ साहब। हमें भी बता दें, खुद ही मजे ले जा रहे हैं, हमें भी बता दें। बताओ ये इसको क्या कारण है? ख्वाजा साहब ने कहा कि 1 मेगावाट बिजली पैदा करने से बेहतर है कि 1 मेगावाट बिजली बचा ली जाए। जी ये कह रहे हैं। अब आया मजा तुम्हें? अगर नहीं मजा आया तो फिर मैं यही कहूंगा कि कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए, कुछ ग्रेस होनी चाहिए। यार ख्वाजा साहब को कुछ ना कहो, ख्वाजा साहब के हल्के की तारीख जो है ना फैसले वाली वो आने वाली है। ख्वाजा साहब पे थोड़ा सा हाथ हल्का रखा। या अल्लाह ख्वाजा साहब को से तंदुरुस्ती अता फरमाना, उनके हल्के के फैसले में खैर बरकत अता फरमाना। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जितनी लोड शेडिंग हो रही है ना उतनी हमसे बिजली नहीं बन रही, आप खुद ही उतनी बिजली बचा ले, साडा जिम्मा दोष पोष। ख्वाजा साहब हमें बिजली बढ़ाउं डे ने, फ्योनिया बढ़ाउं ते चुप करके खान सारे। असल में ख्वाजा साहब ने उस साइंसदान वाली बात की है जिसने पहली दफा बताया था कि उतला 2 नीचे कर दें और नीचे वाला 2 ऊपर कर दें, फिर भी 2 और 2 4 होते हैं। यह कोई आसान काम नहीं था, उसने पहली दफा ये बताया था। अजीजी साहब, आपकी पसंदीदा खबर आ गई। लाहौर चिड़ियाघर में 2 नन्हे शेरों की पैदाइश, शेरों की तादाद 16 हो गई। हाँ सच यार, मैंने तुम्हें बताया नहीं, शेर के घर 2 बचे हुए हैं। मैं परसों गया हूँ चिड़िया घर सैर करने, रेछ बेचारा बैठा हुआ सिगरेट लगा के। मैं कहा चाचा जी खैर है, बड़ा मूड खराब है। कहते 2 दिन हो गए सुते ही नहीं। शेरां दे नाम मुरादां दे घर बाल हो गए, 24 घंटे गुजरे नहीं जाते रहते।
ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਬਾਂਦਰ ਨੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਵੇਲਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਮਿਲਣ ਡਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੇਲ ਮਿਲਣ ਡਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵਾਹ ਮਿਲਣ ਡਈ ਹੈ ਦੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਵੇ 16 ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜੀ 16 ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਿਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਚਵਲੋ ਜੀਓ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਟਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਲ ਹੀ ਜੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੋਖੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ रीक साहब आपके अपने कितने बच्चे हैं? ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਹੀ ਅੱਛੇ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜਕੱਲ ਕਰਾਚੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ ਮਦਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉੱਠ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਗੌਰੀ ਆਇਆ ਹੀ ਚਾਚਾ ਜੀ मैं कल्ला नहीं नाल दरियाई घोड़ा भी आया है नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हाजिर होते हैं आपकी भेजी हुई तस्वीरों और वीडियोस के साथ जिस चीज से प्यार करते हैं उसको सर आंखों पे रखते हैं चलो बिठाओ मुझे फिर सिर अपने ये रिस्क एक दफा थैले ने भी लिया था वो बैठ ही गया देखो वीडियो देखो ये देखो उसी तरबूज जिसका तुम मजाक उड़ाते हो ये देखो ये है मोहब्बत का इजहार सर आंखों पे कैसे उठाया उसने अल्लाह खैर करे शौकिया मदारी में कहीं नीचे गिरा के तोड़ ना लेना तरबूज हिल गया ना ते इन्हू तो कुछ नहीं होना पिछले का नक पीना होना यार गौरी देखो तो सही वैसे यार कमाल है ईमान से इसको कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ के बोले मेरा ख्याल है इसने कोई चीज लगाई हुई है नहीं चिपकाने के लिए वाकई दुआना टेंट के ऊपर नहीं खड़ा हो सकता और टेंट भी बिल्कुल दबाने जैसी हो हाँ जी प्लेन और तिलकनी टेंट है लाइमन इसने ऊपर कोई गूंद शूंद लगा के शरेश लगा के उसको लगाया मेरा ख्याल है कि रास्ते में रोक के इससे कोई पूछ सकता है कि जोड़ी तक ही लेना चाहिए या ये भी हो सकता है कि कार जब पहुंचे तो पिछले बंदे भूल ही जाएंगे उत्तो सिर लाना के दुआना और चेक करें ना तो तरबूज से ज्यादा टिंड लाल निकलेगी अंदर से तुमने मुख्तलिफ क्रिकेट टूर्नामेंट्स में बड़ी खूबसूरत चीयर लीडर्स देखी होंगी जी जी मैं भी तुम्हें कुछ दिखाता हूँ दिखाएं ये देखो को दिल ही ना चढ़ा देना मेरा यार देखो ये शॉट वाह वाह बहुत अच्छा क्या बात हद हो गई ऐसा मैच है वैसे चीयर लीडर्स होनी है ना क्या शॉट किस चीज से मार रहा हो मैच खत्म हो तो बाद में ये जाके बकरी को डाल देते तुम ये देखो ना जिस तरह की चेयर लीडर्स हैं उसी तरह का बैट भी पकड़ा हुआ है उसने बल्कि वो चेयर लीडर्स के हाथ से ही एक डंडा पकड़ के ना पत्ते तार के तो बैट बना दे और मैचों का इनाम मिलता ना इस मैच तो बाद महल्ले वाले गाना बहुत कर रहे मेरा ख्याल है अगर मैच हार जाए तो फिर इसी के साथ क्रिकेटरों को चमते भी होंगे ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ अच्छा जी एक तस्वीर देखे बड़ी क्यूट सी अच्छा ये देखे वाह वाह क्या गुफ्तगू हो रही है जरा तस्वर करो छोटी पर्ची पे इसका 5 रुपए का चलान होने और उसने कहना भाई जी चलान रहने दियो टाफी खा लो मेरे अच्छा वार्डन भी बड़े प्यार से देख रहा है ना हाँ जी अब वो मैया ले रहा है कि यार खड़ा तो मैं इसको कर बैठूं अब इसका चलान करूं या इसका ध्यान करूं लेवर भी नन्ना मुन्ना है गड्डी भी छोटी सी है पिछला बच्चा नु कह रहा है मैं तेनू कहा सी ना रोक हुण दे पैसे वार्डन नु सारे सलांटी दे ते टॉफियां दे नहीं वैसे ये मजाक अपनी जगह इस तरह की जो छोटी मोटरसाइकिलें निकली हुई है ना ये देख के भी बच्चों को बाहर सड़कों पे नहीं मेन रोड पे बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए अच्छा जी एक बड़ी दिलचस्प वीडियो दिखाता हूँ जिसको देख के तुम्हारे मुंह से बेख्तियार निकलेगा इसे कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है
अच्छा अच्छा जी, ये देखें, खजूरों का काश्तकार है। वाह जी वाह, ये देखो, ये आहा, कैसा, वाह वाह उसकी अपनी इजाद है। वाह रे वाह। वाह जी वाह। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਜਾਏਗਾ। बेचारा ऊपर ही ना रह जाए, क्योंकि बुजुर्ग ने नीचे उतरने की दुआ तो नहीं दी। यार वैसे ईमान से कमाल इजाद है, बहुत अच्छे, वाह जी वाह। वेल डन। यार ये कहीं मिले तो इसको मेरा फोन नंबर देना। हाँ, मैंने घर के जाले उतरवाने। एक ऊंट पे होता हुआ जुल्म देखो जरा। अच्छा जी, अल्लाह खैर करे। समझ आ गया, जुल्म, वो जुल्म ऊपर बैठा तेरा हुआ। बेड़ा तर जाए। अल्लाह वापस बैठ गया। वो ऊंट से उठा ही नहीं जा रहा है, इतना मोटा बंदा बैठ गया ऊपर। ये देखो, ऊंट ने अखीर कहा है कि भाई जी मेरे लो जवाब जे ट्रक करा लो। अजीजी इसे कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाय हाय हाय। नाज़रीन, ये था आज का इस्पेहाल। खुश रहें, खुश